السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت کہانی میں آج ہم آپ کے سامنے خاندان نبوت کی عظمت و وجاہت رکھنا چاہتے ہیں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی مادری زبان قبطی تھی اور والد کی زبان عبرانی تھی، یعنی پدری زبان عبرانی، اور ان کے سسرال عربی زبان والے تھے۔ انہی سے اسماعیل علیہ السلام نے عربی میں کمال پیدا کیا۔ انہوں نے 137 سال عمر پائی۔ عدنان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں 21ویں پشت میں ہیں۔ یہ قیدار کی اولاد میں سے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سلسلہ نسب بیان فرماتے تو عدنان پر پہنچ کر رک جاتے، آگے نہ بڑھتے۔ فرماتے تھے کہ ماہرین انساب غلط کہتے ہیں، تاہم علماء کی تحقیق کے مطابق عدنان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 40 پشتیں ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خلق کی تخلیق فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ میں رکھا، پھر ان کے بھی 2 گروہوں میں سب سے زیادہ اچھے گروہ میں مجھے رکھا، پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے میں رکھا، پھر گھرانوں کو چنا تو مجھے سب سے اچھے گھرانے میں رکھا، لہذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے ممتاز ہوں۔ عدنان کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام ہمارا یہ چینل سیرت کہانی صرف اور صرف اس لیے شروع کیا گیا ہے کہ ہم اور آپ اور ہمارے بچے سیرت سے واقف ہوں، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف ہوں۔ اس لیے آپ سیرت کہانی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کر دیں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ عاد تھا، ان کا نام نسب نبوی میں آتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے میں آتا ہے۔ دوسرے بیٹے کا نام وعاق تھا اور انہوں نے حجاز سے اٹھ کر یمن میں اپنی سلطنت قائم کر لی تھی۔ معد کے بیٹے نزار تھے۔ امام احمد ابن حنبل علیہ رحمہ کا نسب ان سے ملتا ہے۔ ان کی اولاد مضر میں سے کنانہ تھے، اور کنانہ کا ذکر حدیث شریف میں آتا ہے۔ کنانہ سے قریش کا قبیلہ وجود میں آیا۔ ان کا نام فہر تھا، اور ان کے دور میں حسان حاکم یمن اپنی فوج لے کر مکہ معظمہ پر حملہ آور ہوا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ خانہ کعبہ کو گرا کر اس کا ملبہ یمن لے جائے اور وہاں کعبہ تعمیر کرے۔ فہر نے اپنے بھائیوں کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا، حسان کو شکست ہوئی، اسے گرفتار کر لیا گیا، 3 سال تک قید رہا، پھر فہر نے اسے آزاد کر دیا۔ حسان یمن واپس جا رہا تھا کہ راستے میں مر گیا۔ اس فتح سے فہر کی عظمت و شوکت کا دبدبہ پورے عرب میں قائم ہو گیا۔ لغت حجاز میں قریش وہیل مچھلی کو کہتے ہیں۔ یہ سمندر کا سب سے بڑا جانور ہے، اور فہر اور ان کی اولاد کو قریش اس لیے کہا جانے لگا کہ وہ عرب بھر میں تمام قبائل سے زیادہ طاقتور اور عظیم الشان تھے۔ اس سے پہلے کہ قریش اور ان کے بعد کے حالات بیان کیے جائیں، ہم تھوڑی دیر مکہ کی عمارت کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء اجداد کی بات یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تاحیات مکہ کے متولی رہے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے نابت اور کیدار اس کے متولی بنے۔ ان کی معیشت کا دار و مدار یمن اور مصر و شام کی تجارت پر تھا، اور ان کے بعد ان کے نانا مغاد بن عمرو جرہمی نے زمام کار اپنے ہاتھ میں لی، یعنی بنو جرہم نے تولیت سنبھال لی، اور مکہ کی سربراہی بنو جرہم کی طرف منتقل ہو گئی۔ ایک لمبی مدت تک وہ عملاً مکہ کے والی بنے رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ بیت اللہ کے بانیوں میں معمار تھے، اس لیے ان کی اولاد کو ایک باوقار مقام حاصل رہا، لیکن اقتدار و اختیار میں ان کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 2000 سال قبل مسیح کا ہے۔ اس حساب سے مکہ میں قبیلہ جرہم کا وجود کوئی 2100 برس تک رہا۔ ان کی حکمرانی 2000 سال تک رہی۔ حضرت اسماعیل کی اولاد اس عرصے میں گوشہ گمنامی سے نہ نکل سکی، یہاں تک کہ بخت نصر کے ظہور سے کچھ پہلے بنو جرہم کی طاقت کمزور پڑ گئی، اور مکہ کے افق پر عدنان کا سیاسی ستارہ جگمگانا شروع ہوا۔ مکہ میں بنو جرہم کی حالت خراب سے خراب تر ہوتی چلی گئی۔ انہیں تنگ دستی نے آ گھیرا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے زائرین بیت اللہ پر زیادتیاں شروع کر دیں۔ وہ بیت اللہ کا مال کھانے سے بھی دریغ نہ کرتے۔ بنو عدنان ان کی اس حالت سے سخت ناراض تھے اور ان کی حرکات پر کڑتے رہتے تھے۔ چنانچہ بنو خزاعہ نے اس نفرت سے فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے بنو عدنان کی حمایت سے بنو جرہم کے خلاف جنگ چھیڑ دی، اور 2 صدی عیسوی کے وسط میں بنو جرہم کو مکہ سے بے دخل کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت زمزم کا کنواں
पाट दिया, यानी उसमें उसको बंद कर दिया। अहले फ़ारिस पिछले दौर में बैतुल्लाह के लिए अम्वाल और जवाहरात भेजते रहते थे। सासान बिन बाबुक ने सोने के बने हुए 2 हिरन, जवाहरात, तलवारें और बहुत सा सोना भेजा था। अमर बिन हारिस जुरहुमी ने यह सारा माल जमज़म के कुएं में दफन कर दिया और ख़ुद यमन की तरफ रवाना हो गया। अब बनु खुज़ाआ ने मक्का पर तनहा अपनी हुक्मरानी कायम की। इनका इक़्तिदार 300 बरस तक रहा, हत्ता कि कुसई बिन किलाब का ज़ुहूर हुआ। कुसई अभी माँ की गोद में थे कि वालिद का इंतकाल हो गया। इनकी वालदा ने रबिया बिन हराम से शादी कर ली और बच्चे समेत खावंद के साथ शाम चली गई। कुसई जवान हुए तो मक्का वापस आए और उनकी शादी मक्का के वाली हुलैल ख़ज़ाई की बेटी हिब्बी से हो गई। हुलैल का इंतकाल हुआ तो मक्का और बैतुल्लाह की तवलियत के लिए बनु खुज़ाआ और कुरैश में जंग हुई। कुरैश फतहयाब हुए और कुसई मक्का और बैतुल्लाह पर काबिज़ हो गए। कुसई का मक्का पर एक कब्ज़ा और तवलियत 440 ईस्वी की बात है। उन्होंने बहुत से काबिल ज़िक्र कारनामे अंजाम दिए। हरम काबा के शिमाल में दारुन नदवा तामीर किया। इसका दरवाज़ा बैतुल्लाह की तरफ था। ये दर हकीकत कुरैश की पार्लियामेंट थी, जहाँ तमाम अहम मामलात के फ़ैसले होते थे। यहाँ जंग की तैयारी भी होती, काफ़िले बाहर जाते तो यहीं से तैयार होकर जाते। निकाह और दीगर तकरीबात के मरासिम भी यहीं अदा होते थे। उन्होंने सिकाया यानी हाजियों को जमज़म पिलाना और रिफ़ादा हज्जाज की ज़ियाफ़त करना, जो खुदाम हरम का सबसे बड़ा मनसब था, कायम किया। तमाम कुरैश को जमा करके इन्हें हज्जाज की खिदमत और ज़ियाफ़त के लिए तैयार किया और इन पर वाज़े किया कि लोग सैकड़ों मील की मसाफ़त तय करके आते हैं, इनकी मेज़बानी कुरैश का फ़र्ज़ है। एक सालाना रकम मुकर्रर की जिससे मिना और मक्का मुकर्रमा में हज्जाज को खाना तकसीम किया जाता था। उन्होंने चमड़े के हौज़ बनाए जिनमें अय्याम हज में पानी भर दिया जाता था। बाज़ मौर्रिखीन ने लिखा है कि कुरैश का लक़ब इन्हीं को मिला था। मौर्रिखीन इसकी वजह ये बयान करते हैं कि उन्होंने ख़ानदान को जमा करके काबा के आसपास बसाया था। इनके 6 बेटे थे जिनमें अब्दुद्दार और अब्द मुनाफ ने ज़्यादा शोहरत हासिल की। मरते वक्त उन्होंने तमाम मनासिब अपने बड़े बेटे अब्दुद्दार को सौंपे, ताहम अब्द मुनाफ ने अपनी खुसूसियात के बायस कुरैश की सियादत हासिल कर ली और इन्हीं का ख़ानदान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ास ख़ानदान है। अब्द मुनाफ के 6 बेटे थे। इनमें से हाशिम नहायत मालदार और बाअसर थे। उन्होंने भाइयों को इस बात पर आमादा किया कि बनु अब्दुद्दार से हरम के मनासिब वापस ले लिए जाएँ, क्योंकि वो लोग इस मनसब के अहल नहीं। अब्दुद्दार के लोगों ने इनकार किया और जंग की तैयारियां शुरू कर दी। बिलाखिर सुलह हो गई। बनु अब्दुद्दार ने सिकाया और रिफादा बनु हाशिम को वापस कर दिया। हाशिम अपने कबीले के सरदार मुकर्रर हुए। अपनी ज़िम्मेदारी बड़ी खूबी से अदा करते थे। उन्होंने हुज्जाज की खिदमत इस शानदार तरीके से की कि लोग मिसालें देने लगे। तजारत को खूब तरक्की दी। कैसर रूम से ख़त व किताबत की और इसे ये फरमान हासिल कर लिया कि कुरैश इसके मुल्क में सामान तिजारत लेकर जाएँ तो इनसे कोई टैक्स न लिया जाए। हबशा के बादशाह नजाशी से भी इसी किस्म का फरमान हासिल किया। अहले अरब सर्दियों में यमन और हबशा का सफ़र करते थे और गर्मियों में शाम और एशियाई कोचक तक तिजारत के लिए जाया करते थे। उस ज़माने में अंगूरिया मौजूदा तुर्की का दारुल हुकूमत अनकरा एशियाई कोचक का मशहूर शहर था। यहाँ रूम का बादशाह कैसर के लक़ब से रहता था। कुरैश अंगूरिया जाते तो कैसर नहायत इज़्ज़त से पेश आता और इनका इस्तकबाल करता था। इस दौर में काफ़िलों के लिए रास्ते महफूज न थे। हाशिम ने मुख्तलिफ़ कबाइल के दौरे किए और इनसे मुआहदे किए और वो कुरैश के कारवान तिजारत को ज़रर ना पहुँचाएँगे, इसका उन्होंने उनसे मुआहदा कर लिया। इसके सिले में कारवान कुरैश इन कबाइल में इनकी ज़रूरत की चीज़ें लेकर ख़ुद बहम पहुँचाएगा और इनसे ख़रीद व फ़रोख्त करेगा। यही सबब था कि अरब में बावजूद आम लूट मार के कुरैश का काफ़िला तिजारत हमेशा महफूज रहता था। एक दफ़ा मक्का में कहत पड़ा। हाशिम ने इस कहत में रोटियों का चूरा करके लोगों को खिलाया। इस वक्त से इनका नाम हाशिम मशहूर हो गया, क्योंकि अरबी ज़ुबान में चूरा करने वाले को हशम कहते हैं, चूरा करने को हशम कहते हैं, जिसका इसमें फ़ाइल हाशिम है। एक बार वो तिजारत की गर्ज से शाम गए। रास्ता में मदीना ठहरे। वहाँ साल के साल बाज़ार लगता था। बाज़ार गए तो एक औरत को देखा। इसकी हरकत व सकनात से शराफत व फरासत का इजहार होता था। साथ ही साथ वो नहायत हसीन व जमील भी थी। दरियाफ़्त किया तो मालूम हुआ कि उसका नाम सलमा है और बनु नज्जार से ताल्लुक़ है। उसका वालिद भी कबीला का सरदार था।
हाशिम ने शादी की दरख्वास्त की तो कबूल कर ली गई, निकाह हो गया। उन्होंने मदीना में कुछ देर क़याम किया। हाशिम वहाँ से फ़लस्तीन तशरीफ़ ले गए। बाद में सलमा के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम शैबा रखा गया। यही शैबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान हैं। हाशिम गज़ा के शहर में मुकीम थे, वहीं बीमार होकर वफ़ात पा गए और वहीं दफन हुए। उधर उनके बेटे शैबा मदीना में ही परवरिश पाते रहे। जब उनकी उम्र 8 साल हुई तो हाशिम के भाई, जिनका नाम मुत्तलब था, मदीना गए। भतीजे से मुलाकात की, भाई की मोहब्बत ने जोश मारा। 3 दिन वहाँ रहे। शैबा की वालदा से बच्चे को लेकर मक्का जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की और चौथे दिन शैबा को साथ लेकर मक्का मुकर्रमा रवाना हो गए। यही हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा मोहतरम हैं और इनका ये नाम शैबा लफ्ज़ी माना बूढ़ा है। जब वो पैदा हुए तो इनकी चुंदिया में चंद बाल सफ़ेद थे, यानी इनके सर के अंदर, इसीलिए इनका नाम शैबा रखा गया। मक्का आए तो इनके चचा मुत्तलब ने बेटों से बढ़कर नाज़ो नेम से परवरिश की और तरबियत की। और जब वो मक्का में दाखिल हो रहे थे तो वो अपने चचा मुत्तलब के पीछे अपने ऊँट पर सवार थे, इसलिए लोगों ने जब उनको देखा तो उन्होंने अब्द मुत्तलिब कहना शुरू कर दिया, यानी मुत्तलब के ग़ुलाम। और असली नाम उनका जो है वो शैबा था, लेकिन ये अब्दुल मुत्तलिब या अब्द मुत्तलिब इस कदर मारूफ़ हुआ ये लक़ब कि इसी से वो पहचाने जाते हैं और उनका असल नाम गोशाए गुमनामी में चला गया। इसी तरह उनके और भी नाम हैं, फ़य्याज़, मुतइम, तैर समा भी मुख्तलिफ़ तवारीख़ में उनके नाम आते हैं। ये बिला शुबा कुरैश के सैयद थे। कुरैश में इनके इस खिताब का कोई मुनकर न था। हाशिम के 3 और भाई मुत्तलब, नौफिल और अब्द शम थे। अपने बाप के बाद जब हाशिम कौम के सरदार बने तो इनके भतीजे उमैया बिन अब्द शम्स ने इनकी सरदारी तस्लीम करने से इनकार कर दिया। अस्कलान का एक काहिन मुनसिफ ठहरा, इसने हाशिम के हक़ में फ़ैसला दिया और उमैया को 10 बरस के लिए जलावतन होना पड़ा। उमैया को अपने चचा हाशिम से जो इख्तिलाफ़ शुरू हो गया था वो आइंदा नस्लों में मुंतकल हुआ। हाशिम और मुत्तलब की औलाद एक जानिब और नौफिल और अब्दशम की औलाद दूसरी जानिब रहा करती, यानी ये एक सियासी इख्तिलाफ़ था जो इनके अंदर बाहमी नफ़रत और अदावत का बहरहाल सबब और वजह रही, और इसकी वजह से ही 20 वाक़यात इस हवाले से मारूफ़ हैं। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मसऊद की बरकत थी कि नस्लों की अदावतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी के बाद मादूम हो गई। मज़ीद कहानी इंशाअल्लाह अगली किस्त में आपको सुनाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।